Class 12th Commerce, Subject Accountancy, Chapter number 5, Retirement, Death. देखिए स्लैश है, स्लैश का मतलब है कि we will do both. Retirement / death of a partner, lecture number 2. See, all the basic things, those were done. Now I am directly moving on to illustrations. Apurva, Dimple, Komal and Saloni, they are friends. Again listen, the people are 4 friends. Their PSR, profit sharing ratio, is 2:2, 1:1. Then see, Dimple and Komal both decided to retire from the firm. The goodwill of the firm, FIRM, the goodwill of the firm was valued at rupees 9 lakh. Apurva and Saloni decided to share their future profits and losses 3:2. Now listen, this is the NPSR. After the retirement, Apurva and Saloni, they will be the partners, and their PSR, profit sharing ratio, is 3:2. Pass the necessary journal entry for the treatment of goodwill. ये goodwill के लिए आपको journal entry बनाना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Solution. Apurva's capital account debit, it is 2,40,000. Saloni's capital account debit, 2,10,000. To Dimple's capital account, it is 3 lakh. To Komal's capital account, it is 1,50,000. Dimple and Komal's share of goodwill debited to the gaining partners in their gaining ratio, that is 8:7. And now listen, it is the only admission in which we discuss the ratio that remains sacrificing ratio for goodwill. And then when the matter is of retirement and death of a partner, in that case gaining ratio is considered. Gaining ratio is considered for the sharing of the amount of goodwill. Next illustration, now see. And one more thing I want to say, illustrations can be different from your book. It never means that you will be confused. You should not be confused. Question can be from any book, but the solution, but the way to solve them, it is always similar. When it is Maheshwari book, Grewal, Goyal, whatever is the book. चलिए आते हैं illustration. Kavi, Ravi, Kumar and Guru. They were partner, they are 4 partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. यानी कि 3:1. It is the ratio of Kavi, Ravi, Kumar, Guru. On 1st Feb 2017, the new profit sharing ratio decided between Ravi, Kavi and Kumar, it was 3:1:1. On the retirement, the goodwill of the firm was valued at rupees 3,60,000. Pass necessary journal entry in the books of the firm for the retirement of goodwill on, see, for the, not it is for the treatment है बेटा, दोबारा सुनिए. Pass necessary journal entry in the books of the firm for the treatment goodwill. How can it be retired? It is only treatment of goodwill on Guru's retirement. Solution. Kavi's capital account debit 81,000 to Ravi's capital account 18,000 to Kumar's capital account 18,000 to Guru's capital account 45,000. Adjustment of goodwill, it is on the retirement of Guru. Now move on to very interesting part. It is now hidden goodwill. Hidden goodwill means कि इस goodwill को आपको ढूंढना होगा. This goodwill directly will not be given to you in question, so its name, it is hidden goodwill. Now move on to illustration number 19. You know, see. देखो बेटे, illustration number 19, it does not mean it will be of your book. It can be from any book, but मेरी बात को समझिए. क्वेश्चन करने का तरीका ग्रेवाल, गोयल, महेश्वरी,
एंड जो अभिषेक की बुक है वो इट कैन बी एनी बुक बट मेथड विल बी द सेम. अमल, बिक्की, चंदू, कितने सुंदर नाम है देखिए, अमल, बिक्की, चंदू. दे आर द पार्टनर्स. देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:2:3. Chandu retires and his capital after making all the adjustment for reserves and gain profit on revaluation. It is rupees 2,20,000. And now see, Chandu की इच्छा है कि वो रिटायर हो जाए. Amal and Vicky agreed to pay him rupees 2,50,000 in full settlement of the claim. Now listen, जो कैपिटल अकाउंट में पैसा लिखा है that is 2,20,000 and they are ready to pay 2,30,000. In full settlement of his claim, pass necessary journal entry for the retirement of for the it is treatment debtor, not retirement. Treatment. A journal entry for the treatment of goodwill if the new profit sharing ratio decided that is 1:3. अब यहाँ ये देखिए कि सॉल्यूशन पर नाउ आई एम मूविंग ऑन टू सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में बिफोर आई विल मूव ऑन टू गेनिंग रेशो का कैलकुलेशन. गेनिंग रेशो, गेन और गेनिंग रेशो ऑफ अ पार्टनर इज न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर. न्यू में से ओल्ड को माइनस करना है. बाय डूइंग दिस यू सॉ दैट अमल इज गेनिंग 1/12, बिक्की इज गेनिंग 5/12. सो द गेनिंग रेशो बिटवीन Amal and Vicky, that is 1:5. Now move on to this goodwill part. Total amount they are paying, it is 2,50,000 and the amount that is in his capital account, that is 2,20,000. So the more amount, it is 30,000. This is hidden goodwill. Now you have to do the journal entry for this hidden goodwill. Amal's capital account debit 30,000. And now one more thing. It is now how will you solve it? First of all, see. Amal का capital account debit हुआ 5,000 आया. And for Amal it is 30,000 into 1/12. You will get 5,000. बिक्की का क्या है देखिए. It is 5/12. 30,000 into 5/12, you will get 25,000. Now move on to journal. Amal's capital account debit 30,000 into 1/12, rupees 5,000. Vicky's capital account debit rupees 25,000. And how did you get this 25,000? 30,000 into 5/12. To Chandu's capital account, it is already given to you. That amount is of rupees 30,000. Chandu's share of goodwill adjusted to the capital accounts of Amal and Vicky in their gaining ratio, and see that gaining ratio is 1:5. It has been explained by me now. It is given to you in working note also. Illustration number 19. See, I taught you just now how to treat the hidden goodwill, how to find even the hidden goodwill. उसको आपको कैसे find out करना है. Now move on to the revaluation of assets and liabilities. See, in change in profit sharing ratio at the time of admission of a partner and now retirement, revaluation of assets and liabilities is done. Revaluation account itself comes in nominal account where you record all the liabilities and assets. घटे तो आ गए डेबिट में, अगर वो बढ़े तो आ गए हमारे क्रेडिट में. सी, एसेट्स का बढ़ना क्रेडिट, लायबिलिटीज का बढ़ना डेबिट, एसेट्स का कम होना डेबिट और लायबिलिटी का कम होना क्रेडिट. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन सी. इट इज द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी. And now their profits and losses, they are 5:3:2. As at 31st March 2020, it was, now see, देखिए क्रेडिटर्स आपके पास में है 15,000, कैपिटल्स ऑफ ए, बी एंड सी. यहां से देखिए बी रिटायर हो रहा है. नाउ सी,
कैश एट बैंक इट इज गिवन टू 27,000, डेटर्स में से प्रोविजन माइनस किया 15,200, स्टॉक आ गया आपका 35, इट इज 35,000, 12,800 इट इज, स्टॉक है आपका 12,800, प्लांट एंड मशीनरी इट इज ऑफ 35,000, लैंड एंड बिल्डिंग इट इज ऑफ ₹30,000, एडिशन टोटल मिला करके आया, दिस इज ऑल 1,20,000। अब देखिए बेटा, बी रिटायर हो रहा है, ए एंड सी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर का जो हमारा प्रॉफिट है दैट विल बी 3:1। आई होप दैट यू पीपल आर गेटिंग माई डियर, माई लविंग, माई वेरी मच रिस्पॉन्सिबल डियर स्टूडेंट्स। बहुत मन लगा कर पढ़ो बेटे, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। अच्छा है जल्दी से कोरोना काल बीते, हम सब मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ सी, रिटायर हुए बी इज गोइंग टू बी रिटायर्ड, A and C, their future profits ratio, their NPSR I should say, it is 3:1. And now following are the adjustments. Debtors of ₹1,100 will be written off as no longer receivables. भाई 1,100 का जो डेटर्स में से पैसा माइनस होगा, ये पैसा मुझे अब मिल ही नहीं रहा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन एट द एग्जिस्टिंग रेट। देखिए एग्जिस्टिंग तो एकदम आंखों में ही बात समझ में आ जाती है, इट इज 5%। और ये 5% आपको कैसे मिला? 800 into 100 डिवाइडेड बाई 16,000, 800 into 100 डिवाइडेड बाई 16,000, आपको 5% मिल गया। एग्जिस्टिंग रेट आपका 5% है। 16,000 into 5/100 आप करते हो, देन यू विल गेट 800। Stock written down by, many times I have told you, if it is written by, पूरे का पूरा money you will take as it is. Land and building written up by 11,000 rupees, plant and machinery to be reduced to 2 में difference देते हैं बेटा 34,000, sundry creditors of ₹700 be written back as no longer payable। मीन्स देखिए liability कम हो रही है, फायदा, you will write this money in the credit side of revaluation account। प्रोविजन आपको रिपेयर्स के लिए बनाना है, पॉइंट नंबर 7, इट विल बी, यू विल राइट दिस इन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। 8th नंबर देखिए, एन ओल्ड कंप्यूटर कंप्लीटली, देखिए वो एक पुराना कंप्यूटर हमने इसको कबाड़ समझ के छोड़ दिया था, जब हमने उसको बेचा तो आई गॉट ₹2,000। सी अगेन ये आपका क्रेडिट में आएगा, बिल्कुल ये पैसा आपको मिला है, यू विल राइट दिस अमाउंट इन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। 9th number, firm had to pay ₹5,000 to an employee injured in an accident। खर्चा फर्म का बिल्कुल पे कर दिया, फर्म हैड टू पे, फर्म को पे करना था। 10th number, an unrecorded machinery at ₹10,000 to be recorded। अभी देखिए अनरिकॉर्डेड मशीन को आप रिकॉर्ड करेंगे तो फायदा ही होगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के। टू गिव इफेक्ट to the above adjustments, you are required to pass necessary journal entries and prepare the revaluation account। आपको revaluation account बनाना है और journal entry बनाना है। And now see, पहला नंबर पर आइए, सी फर्स्ट नंबर क्या हमारा था, ट्रांजैक्शन, डेटर्स ऑफ ₹1,100 बी रिटर्न ऑफ। अब देखिए ये पैसा आपको मिल नहीं रहा, डेटर्स आपके कम हो रहे हैं बिल्कुल, और ये सारे का सारा जो बेसिक है दैट इज ऑफ क्लास 11 एंड आई होप यू बेटर नो क्लास 11। बैड डेट्स खर्चा नुकसान डेबिट हो जाएगा, एसेट्स कम हो रहे हैं दे विल बी क्रेडिटेड। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 1100 इज क्रेडिट एंड डेबिट। नरेशन बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, नरेशन में आप लिखेंगे बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। फाइन, अब आते हैं हम सेकंड नंबर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को आपको मेंटेन करना है 5% पर, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, हाउ द 5% यू केम टू नो, 5% करना है आपको। अब ये देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बिल्कुल 800 आएगा, क्योंकि 1100 का तो नॉट लॉन्गर रिसीवेबल हो गया, बिफोर इट वॉज, सी प्रोविजन आपका 800 का है जो कि आपको बुक में गिवन है, 300 का आपको और बनाना, दिस 1100 है, बिकॉज ऑफ 1100 बैड डेट्स आपके देखिए ऊपर में आ रही है 1100, बाकी का पैसा रिवैल्यूएशन का डेबिट में हो जाएगा। दिस 800 दैट मनी इज गिवन टू यू इन बुक, एग्जिस्टिंग रेट पर बनाना था,
800, देन 800 से जो 1100 बैड डेट से हुआ 300 आपका चला जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अगला देखिए, स्टॉक डाउन बाय 1055। नाउ सी रीवैल्यूएशन। अब ये देखिए जो हमारा 745 कैसे आया, अब ये समझिए, ये सारे बहुत कनेक्टेड हैं। अप्रैल 1 देन अप्रैल 1 थर्ड वाला जो अप्रैल 1 है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब इसमें से आपका गया 16,000 में से माइनस हो गया 1100, इट इज 14,900। उसका हमने बना दिया 5% का उसका प्रोविजन बना करके चले हैं। क्वेश्चन ने बोला 5% बना करके चलिए, द सेम इज डन। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इट इज 745। देन देखो बेटा सी, अब रीवैल्यूएशन में मैंने आपको बोला था अगर बाय लिखा है तो पूरा पैसा लेंगे, द सेम इज डन। स्टॉक की कीमत कम हुई है 1055, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 1055। देन लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत बढ़ी है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 11,000। नाउ प्लांट एंड मशीनरी डाउन आ गई, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, इट इज 1000। अब आते हैं क्रेडिटर्स पे। सी, क्रेडिटर्स को आपको पे नहीं करना बेटा। देखिए लायबिलिटी, व्हेन लायबिलिटीज अकर दे बिकम क्रेडिट। व्हेन लायबिलिटीज डेबिट हो रही है देन यू अंडरस्टैंड दिस अमाउंट इज नॉट टू बी पेड। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 700। उसके बाद में प्रोविजन हमें क्रिएट करना था, बिल्कुल करना था, अमाउंट इज टू बी पेड। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर 600 ईच, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स क्रेडिटेड। ओल्ड कंप्यूटर को हमने बेच दिया, इसको बेच दिया एंड आई गॉट मनी। बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। यहाँ पर बात आपको बहुत ज्यादा समझनी है। एक बार जरा नरेशन क्वेश्चन पर आइए। सी, एन ओल्ड कंप्यूटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, वॉज रिटर्न ऑफ, वॉज सोल्ड ऑफ। रिटर्न नहीं है, सोल्ड ऑफ है बेटा। ये पैसा मिल गया, इस पैसे को आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, आप ये सोच के बताइए। एंड नाउ इट इज द मैटर ऑफ रिटायरमेंट। एक पार्टनर हमारा रिटायर हो गया है और एक कंप्यूटर जिसको मैंने राइट ऑफ कर दिया था उसको मैंने बेच दिया। इट इज सो सिंपल, व्हेन द थिंग्स आर सोल्ड एंड देयर इज नो अदर प्लेस अदर देन टू रिकॉर्ड दिस अमाउंट इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। बैंक में पैसा जुड़ेगा और क्योंकि रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, उस पैसे को बैलेंस करने के लिए कैपिटल अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इट विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट, इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन 2000। अगला देखिए, अब यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग सा एक पॉइंट है कि हमने पैसा पे कर दिया, एम्प्लॉय को पैसा पे हुआ है। जब एम्प्लॉय को पैसा पे हुआ तो आप पेमेंट ही दिखाएंगे, सीधी सी बात है। इट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5000 ईच। आफ्टर दैट अनरिकॉर्डेड मशीनरी को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। नाउ सी, ये जो लास्ट अप्रैल 1, this amount has been received after the preparation of revaluation account. Now see, revaluation account debit 15,000 to A's capital account 7,500 to B's capital account 4,500 और C के अकाउंट में आ गई 3,000। It is the transfer of gain on revaluation। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट पर आ जाइए। बैड डेट्स आपने बहुत ध्यान से देखा एंड आई होप दैट यू विल गेट कि आपको सिर्फ 5% मेंटेन करना है। वो 1100 से हट करके आ गया आपका 800 एंड नाउ सी, उसको पैसा मिल नहीं रहा था। इफ यू रिमेंबर द ट्रांजेक्शन, मैं एक बार और पढ़ रही हूँ, आप लोग देखिए जरा सी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी मेंटेन्ड एट द एग्जिस्टिंग रेट, इट इज फाइन। डेटर्स ऑफ रुपीज 1100 मस्ट बी रिटर्न ऑफ एज नो लॉन्गर रिसीवेबल। वो पैसा आपको मिल नहीं रहा, नुकसान आपका पहले 800 था, अब 1100 हो गया, 300 से लॉस आपका बढ़ा है। एंड सी आफ्टर दैट व्हाट इज डन टू स्टॉक अकाउंट 1055, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1000। सी दिस ऑल इट इज ओनली द लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग इज डन फ्रॉम जर्नल एंट्रीज टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 745। अब ये देखिए 16,000 में से 1100 तो उसको मिला ही नहीं,
14,900 का हमने बना लिया 5% का प्रोविजन, दैट इज 745 टू बैंक अकाउंट। कंपनसेशन हमने पे किया, बिल्कुल पे किया। अब आते हैं ऑन क्रेडिट साइड। सी बाय लैंड एंड बिल्डिंग, जो पैसा बढ़ा, जो फायदा हमारा रहा, ऑल फायदा इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 11,000, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 700, बाय बैंक पुराना कंप्यूटर को बेच दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बेनिफिट फायदा गेन 2,000, बाय मशीनरी अकाउंट 10,000। नाउ सी क्रेडिट इज साइड इज मोर, debit is less. When credit side is more and debit is less, there is gain, fayda, profit. A's capital account 7,500, it is see to gain transferred to A's capital account 7,500, B's capital account 4,500, C's capital account 3,000, 15,000 का profit। and in previous जो slide था इसके पहले वाले slide में it was journal entry was done। journal entry क्या होगी? revaluation account debit to all partners capital account। thank you so much। in case of any doubt you can call me, you can ask from me। thank you so much।